वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देख सेवा कर होए है शुभ कर मन ते कब न डरो। शुभ कर मन ते कब न डरो। अर सो जब जाय डरो जाय डरो। निश्चय कर अपनी जीत करो जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। देख शिवा कर होए है शुभ कर मन ते कब न डरो। शुभ कर मन ते कब न डरो। हर सिख हो अपने ही मन को वह लालच को गुण का चरो वह लालच को गुण का चरो। देख शिवा वर मोहे है शुभ कर मन ते कब न डरो। शुभ कर मन ते कब न डरो। जब भाव की याद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो अत हिरण में तब जूझ मरो। देख शिवा कर होए है शुभ कर मन ते कब न डरो। शुभ कर मन ते कब न डरो। शुभ कर मन ते कब न डरो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की जीएचजी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के विहड़े विच आए बीएड के विद्यार्थी एमएड के विद्यार्थी फार्मेसी के विद्यार्थी आप सबनों जी आया। अज असीं इत्थे एकत्रित होए हां एक विशेष वर्कशॉप लई। जिवें कि तुहानूं पता है कि जीएचजी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक सिक्ख्या कॉलेज है। सिक्ख्या कॉलेज भाव वो कॉलेज जिहदे विच पढ़न वाले विद्यार्थियों ने भविख दे विच अध्यापक बनना ते अध्यापक बन के अध्यापन करना ते अध्यापन भी एक तरह की कला है। ते उस कला नूं होर किस तरह निखारिया जा सकता है, किहड़ियां चीज़ां का ध्यान रखना चाहिए ते असीं किस तरह अलग अलग खेत्तरां दे विच अध्यापन कर सकते हैं, चाहे वो भाषा की गल होए चाहे वो विज्ञान की गल होए। सो इस नाल संबंधित वर्कशॉप का आयोजन करने साडे कोल मुख्य तौर पर पहुंचे ने डॉक्टर समृति भारद्वाज जी LPU यूनीवर्सिटी तो हैड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स तो। सो असी जीएचजी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बेड़े विच प्रिंसीपल साहबान वालों मैनेजिंग कमेटी वालों ते सारे विद्यार्थियों वालों आपको जी आया कहते हैं। ग्लोबल वेलकम वास्ते मैं जी आया कहांगा जी, तुसीं कृपा करके मंच ते आओ। साडे अज दे मुख्य मेहमान साडे प्रिंसीपल डॉक्टर प्रगट सिंह गच्चा जी, रशवाल सर, गुरमीत खजूर सर, कृपा करके मंच ते आओ। डॉक्टर समृति भारद्वाज। मैडम के नाल हाँ जी सेम विभाग तो प्रोफैसर तरनजीत जी, जी आया हूँ सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਅਭਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਨੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਮਾ ਥੈਰੇਪੀ, ਥੀਏਟਰ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਥੀਏਟਰ ਫॉर ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਡਮ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ LPU ਲਖਨਊ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਮੰਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਭਾਰਦਵਾਜ। Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. You understand the sign language? Okay, follow it. Okay, so this was the pitch, voice pitch. Let's try some emotions. You're very enthusiastic. Good morning, ma'am. You're very angry. Very angry. Anger कम है थोड़ा, है ना? Okay. You're getting bored. Yes! Good morning, everyone. So, जिंदगी एक्सपेक्टेशन से भरी है। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी 3 भाषाएं मुझे आती हैं। आती मुझे तमिल भी है,
समझेंगे नहीं, थोड़ी सी बंगाली भी आती है। आप कोई कह मत देना कि तमिल आती है, मुझे नहीं आती। एनीवे, भाषा की दिक्कत होगी तो मुझे रोक के कह देना। मैं पंजाबी बोल लेती हूँ, इंग्लिश बोल लेती हूँ और हिंदी बोल लेती हूँ, थोड़ी हरियाणवी बोल लेती हूँ। जिंदगी एक्सपेक्टेशन से भरी हुई है। हम सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? आप बताएंगे प्लीज क्या करते हैं? ग्रीन सी, यस, विद अ बॉटल इन हैंड। पीछे पीछे, आप भी को कह रही हूँ, आपको पता लग गया। बैठे बैठे बोलिए, जल्दी से बोलिए। सुबह कितने बजे उठे? पीछे आप 6 o'clock। क्यों? कॉलेज आना था। खाना क्या खाया? रेड दुपट्टा। कम ऑन, वी आर टीचर्स। खाना क्या खाया? कभी खाया नहीं। किसी ने खाया? सबने खाया। क्या खाया? पराठे। पराठे। क्यों खाए? क्योंकि स्वाद लगते हैं, नंबर 1। एनर्जी तो और भी बहुत चीजों से मिलती है, तो पराठे स्वाद लगते हैं। तो पराठे स्वाद लगते हैं इसलिए खाए। कॉलेज जाना था इसलिए उठे। हम जो कुछ भी करते हैं किसी एक्सपेक्टेशन से करते हैं, isn't it so? अगर एक्सपेक्टेशन नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। सुंदर दिखने का दिल नहीं करेगा तो उठ के नहाएंगे नहीं, अच्छे से कपड़े नहीं पहनेंगे, तैयार नहीं होंगे, नहीं जाएंगे। पढ़ के आगे बढ़ने का मन नहीं होगा तो कॉलेज नहीं आएंगे, क्लासेस नहीं लगाएंगे। सो हर चीज एक्सपेक्टेशन से जुड़ी है। तो जल्दी से मुझे बताते जाइए एक एक करके खुद से कि आज जब आपको पता लगा इस तरह की कोई वर्कशॉप आप अटेंड करने आ रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? बहुत जल्दी से शुरू हो जाइए। ग्रीन दुपट्टा फ्रॉम दिस साइड। एक तो चुप नहीं रहना है, जल्दी जल्दी, हम तो टीचर्स हैं, बोलने का मौका चाहिए। यस, क्या एक्सपेक्टेशन थी? 1 लाइन, जल्दी जल्दी। मैं नीचे आ जाऊं जी? नेक्स्ट, बोलना तो पड़ेगा भाई। ड्रामा कैसे होगा बिना बोले? अच्छा, जो बोलना नहीं चाहते हैं वो इशारे से समझा दें। चलिए, थिएटर बारे जानना चाहिए। ओके, थिएटर वाले डांस आगे। To learn something new क्योंकि हम इस डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते। Very nice. To learn something new because you don't belong to theater. आप कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमें सीखने को मिलेगा कि थिएटर के साथ कितना रिलेट कर सकते हैं। थिएटर के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? ये लाल दुपट्टे वाले आपने नहीं ना बोला, पाप लगेगा देखना। आप क्लास में जाओगे ना, आपके बच्चे भी आंसर नहीं करेंगे। चलिए बताइए। इंटरेस्टिंग, हाँ, बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि इंटरेस्ट कैसे स्टडी में लाने के लिए ड्रामा के साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो आपको मुझसे कहीं बेहतर आता है। किस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए। ओके, आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी से। हम परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस देखने के लिए, वो तो मुझे आती नहीं। नेक्स्ट, कॉपी नहीं करना। साथ बैठे बच्चे कॉपी नहीं करेंगे। कैसे बोलते हैं हम क्लास में? कॉपी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एंजॉय करते हैं। एंजॉय। क्या बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाँ जी, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। ओके, ये कुछ नया क्या है? जल्दी से, यस यस यस, फटाफट। लास्ट 2 पीपल, जल्दी। ओह, थैंक यू सो मच। ओके, अरे किसी ने भी, आपने ऐसा नहीं सोचा कोई बोरिंग सा डॉक्टर, कोई बोरिंग सी टॉपिक पे घंटे का बोरिंग सा लेक्चर होगा, हम बोर होके इधर उधर देखेंगे, फिर बोर होके फोन में देखेंगे, फिर हम बोर होके घर चले जाएंगे, बोर होके बोरिंग से टीचर बनेंगे, बोरिंग से बातें करके बोर होते बच्चों को बोरिंग तरीके से बोर करेंगे। ऐसा नहीं सोचा किसी ने? किसी ने नहीं सोचा? किसी ने नहीं सोचा? आपने सोचा है ना? आपने सोचा? आपको पता है मैं आपको कह रही हूँ, पिंक दुपट्टा
जी, आपने ऐसा सोचा? आपने ऐसा सोचा? कैसा सोचा? कैसा सोचा कि कोई बोरिंग सा लेक्चर होगा? वही सोचा? क्या सोचा? वेरी गुड, कुछ नया जवाब तो आया। यस यस प्लीज। सुनाई नहीं दे रहा। Clap for her for her honesty. Very nice. लेकिन मोस्टली लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि बात यहाँ है थिएटर। बात थिएटर की है। थिएटर एक लाइव आर्ट कहते हैं। लाइव आर्ट माने? लाइव आर्ट माने जिंदा कला। जिंदा कला का क्या मतलब हुआ? कलाएं तो सारी जिंदा होती हैं। जिंदा कला माने कितने किरदार आएंगे जाएंगे, घटनाएं होंगी, समय बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, कैरेक्टर्स के कपड़े बदल जाएंगे, मेकअप बदल जाएंगे, सेट बदल जाएगी, लाइटिंग बदल जाएगी, सब आपके सामने, सब आपके सामने। और याद रखिए, आप सब, कोई भी एक दर्शक नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कमाल है, दर्शक ही होते हैं जब हम नाटक देखने जाते हैं। कोई भी इंसान नाटक देखते हुए केवल दर्शक नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद एक कैरेक्टर होता है, क्योंकि उसके होने से फर्क पड़ता है। आप चाहे बोर होने के लिए आए, लेकिन आपके आने से फर्क पड़ा, आपके आने से फर्क पड़ता है। आप यहां बैठकर 2 बार सिर हिलाते हैं, मुझे फर्क पड़ता है, मेरी एनर्जी में चेंज आता है। तो थिएटर में कभी भी कोई दर्शक, मात्र दर्शक नहीं हो सकता। आप कब किरदार में परिवर्तित हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। अब ये तो बात हुई मेरे सब्जेक्ट की। बात करते हैं एजुकेशन की, यानी आपके सब्जेक्ट की। हम सब पढ़े लिखे हैं? क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं बताइए, जरा जल्दी जल्दी बताइए। अभी जैसे बारिश हो गई, माइक ले लीजिए, चुप नहीं रह सकते आप आज। जी, क्या पढ़े हैं? बीए में क्या सब्जेक्ट थे आपके पास? कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। आगे? बीएससी। साइंस में क्या होता है? केमिकल्स, कोई इक्वेशंस। आगे? आगे? आगे कोई हिस्ट्री पढ़ा है? कोई आगे अंग्रेजी पढ़े? अंग्रेजी नाउन प्रोनाउन पढ़े हैं सब? पंजाबी पढ़े हैं? अकबर बीरबल पढ़े हैं सब? अरे यस, चलो मैं भी ऐसे बैठ जाती हूँ, कुर्सी दे दो। हाँ जी, क्या पढ़ा है आपने? हाँ जी, हाँ जी, क्या सब्जेक्ट थे आपके पास? ये बच्चे सीधे होके बैठेंगे। आप क्यों हंस रहे हो? चलिए जोर से जवाब दीजिए मेरी बातों का। अकबर, बाबर, हुमायूं, केमिकल इक्वेशंस, नाउन प्रोनाउन, हिंदी, अलंकार, सबने पढ़ा है? सबने सेम कैसे पढ़ लिया? सिलेबस सेम होता है 10th तक, सबने सेम पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं है। यानी आपकी एजुकेशन में जब आप पढ़ रहे थे, आप नाउन पढ़ रहे थे, जब मैं पढ़ रही थी मैं भी नाउन पढ़ रही थी। ये कैसे हो गया? यानी कोई फर्क नहीं पड़ा आपके होने से। दिक्कत क्या हुई कि 12, 15, 20, 22 साल अकबर, हुमायूं, बीरबल, दिल्ली का किला, फ्रीडम फाइटर्स, इतिहास, भूगोल, मैथमेटिकल इक्वेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, दिस दैट, सब पढ़ा दिया जाता है, सब पढ़ लिया जाता है। टीचर पूरी तरह तैयार होके आता है, सारी चीजें आप में डाउनलोड कर देता है, आप बेटा मारते हैं, क्लास में जाते हैं, पेपर देते हैं। दिक्कत कहां हुई कि सारे में आप कहां चले गए? आप नहीं भी होते तो क्या फर्क पड़ जाता?
Noun will still be a name of a person, place or a thing, isn't it? हम मिस हो गए। एजुकेशन की जर्नी कहाँ शुरू हुई? टेक्निकलिटीज में किसी चीज के नहीं जाऊंगी आज, बिल्कुल सीधी सपाट बात, कुछ गेम्स, कुछ एक्सरसाइजेज जो आप अपनी क्लासेस में खुद को एक बेहतर टीचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके, उन्हीं में रहूंगी बस। शर्त केवल एक, जब पूछूं, जिससे पूछूं, जवाब दीजिए जो मन में आए। आप मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है? हमारे माँ बाप का वक्त था जब, तो एक टीचर होता था, सिर्फ उसी को पता होता था, वो आता था, जो पढ़ाता था वो पढ़ लेते थे बच्चे। फिर जमाना आया टेक्स्ट बुक्स का, किताबें जरूरी हो गई, लाइब्रेरियां जरूरी हो गई। सॉरी, आई हैव अ बैड थ्रोट, जस्ट पार्ट। किताबें जरूरी हुई तो समझ आया कि पहले केवल सुन रहे थे टीचर्स का, जब देखने लगे, जब देख के पढ़ने लगे तो ज्यादा समझ आने लगा। फिर लगा कि नहीं, बोरिंग हो गया, कुछ ऑडियो विजुअल एड्स टाइप होना चाहिए, प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, यही सिखाया जाता है आपको। चार्ट पेपर्स बनाते हैं आप, स्टडी मटेरियल बनाते हैं, कलरफुल किताबें, कॉपियों के कवर, पेंसिलें, कलरफुल डिपिक्शन, पिक्टोरियल, आया यहाँ तक? अब क्या कमी रह गई? अब क्यों बच्चे ध्यान नहीं देते क्लास में? क्या कमी रह गई? जल्दी से बताइए, अब क्या कमी रह गई? अब थिएटर की क्या जरूरत पड़ी? चलिए फटाफट, आप पीछे वाले, आपके पीछे से जी, जल्दी से जल्दी से। क्या फील करते हैं आप, आप फ्यूचर के टीचर होने वाले हैं, क्या फील करते हैं आप कि क्या कमी है? किस तरह से इंटरेस्ट नहीं बनता बच्चों का बहुत लंबे समय तक? हाँ, पास कर लो सर। लेक्चर बोरिंग होते हैं। लेक्चर सुनेगा तो बोरिंग होगा ना, फिलहाल तो सुन नहीं रहा। लेक्चर बोरिंग होते हैं। आगे आप बताइए। लेक्चर बोरिंग होते, लेक्चर बोरिंग क्यों होते हैं? ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, सोशल मीडिया ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए टीचर बोरिंग होते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, आपका ऐसा सोच है, ठीक है, ये है रीजन। आगे, ऑनलाइन स्टडी की वजह से टीचर बोरिंग हो गए, स्टूडेंट्स का ध्यान कहीं और चला गया। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि बच्चों का ध्यान कम क्यों लगता है? किस चीज के लिए हम यहाँ आए हैं? जैसे आपका अभी। ओके, नेक्स्ट, पीछे। स्टूडेंट्स की रियल लाइफ के ਨਾਲ मतलब कनेक्शन नहीं हो पाਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁਦ। What do you think yourself as a teachers? टीचर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं टीचर्स? क्या काम करते हैं टीचर्स? आप लोग फ्यूचर के टीचर्स होने वाले हैं। बात टीचर्स की करते हैं, जल्दी से बोलिए, फिर से गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा नहीं तो। यस, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। टीचर क्या होता है? टीचर जो बच्चे के साथ कनेक्ट करके उसे पढ़ाता है। टीचर जो बच्चे के साथ कनेक्ट करके उसको पढ़ाता है, ठीक है। अगला,
नॉलेज प्रोवाइड करता है। वेरी गुड, आगे पीछे, जल्दी 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 जल्दी। अब टीचर की डेफिनेशन तो मुझसे बेहतर जानते होंगे आप। बी क्रिएटिव, कितना ऐड कर सकते हैं? चलिए आएंगे आप तक भी। बी क्रिएटिव, अगला जल्दी जल्दी जल्दी। जो बच्चों को गाइडेंस करता है। चलिए आगे। जो उनकी वीकनेस को दूर करे। जो उनकी वीकनेसेस को दूर करे। ओके, काइंड ऑफ च्यवनप्राश। ओके, यस। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। इंटरेस्टिंग तरीके के साथ नॉलेज प्रोवाइड करें। वेरी गुड, आगे। मैम जो बच्चों को वापस वापस बैक गियर लगाओ सर। चलिए, हाँ जी। इंटरेस्टिंग तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करे और हमारी सोसाइटी के साथ जोड़ के आगे बढ़ने का सब तरीका सिखाते हैं, कैसे मतलब हम अपने सोसाइटी में रह के नॉलेज प्रोवाइड करके सब कुछ सोसाइटी में कैसे बेहतर सिटीजन बने आप। वेरी गुड। और अपने फ्यूचर को लेकर सब नॉलेज प्रोवाइड करके आगे जाके बच्चे ने क्या बनना है, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है, क्या वो भर्ती है, उसको फिर वो देख के उसको पॉलिश करके आगे। ये क्या हो गया? तालियां हो जाए। देखो चिकन उसको बैठे हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट। टीचर जो बच्चों को टीच तो करते हैं जो सिलेबस है क्लास का, उसके अलावा उन्हें लाइफ में जहाँ भी गाइडेंस की जरूरत पड़े गाइड करें और उन्हें सोसाइटी का बेस्ट सिटीजन बनने में हेल्प करें। नेक्स्ट। टीचर जो बच्चे ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡ ਕਰੇ। वेरी गुड, नेक्स्ट। फार्मेसी वाले बच्चे ऐसा ना सोचे कि वो बच रहे हैं। मुझे पता है यहाँ कुछ बच्चे फार्मेसी से भी हैं, तो हम उन पर भी आ रहे हैं। चलिए, मैम टीचर हुए जो बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करता है। माइक मिलेगा बोलने को। जी जी जी, हाँ, टीचर वो है जो बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, वेरी गुड। different students having different caliber, different interest. So teacher की ये responsibility होनी चाहिए कि उनकी caliber और interest के accordingly वो उन्हें teach करें। वेरी गुड, ओके। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों को गाइडेंस देना फ्यूचर के लिए और उसको प्रॉपर नॉलेज देना, मतलब सिलेबस के हिसाब से भी और सोशली भी। वेरी गुड, हाथ खड़ा किया था जिन्होंने, शाबाश। Ma'am, teachers are creators. They dig talent out of students. Very nice. Teachers are creators. Okay. Anybody else? Guidance हो गई. Teachers are creators. Very good. They show you the path to the future. They guide you as to how to manage your weaknesses and bring out your strengths, your capabilities, your talent. What else? Anything else? Anything else? चलिए, टीचर के फर्ज तो हमें पता लग गए। ओके, शुरू करें वर्कशॉप। चले, चलिए अब मुझे ये बताइए जल्दी जल्दी, बीते कुछ सेकंड में क्या सोचा आपने? जल्दी जल्दी माइक लीजिए, हाथ खड़े करके माइक लीजिए फटाफट। क्या सोचा? सर के पास लाइए माइक। नेक्स्ट, तैयार रखिए जवाब। ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ
या तो आपको हेल्प चाहिए। ओके गुड, नेक्स्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, ये रेड रेड दुपट्टा, ये कुछ पढ़ना है जाके, कुछ हेल्प चाहिए। नेक्स्ट रेड दुपट्टा, ऑल द रेड दुपट्टा शुड बी कवर्ड, यस क्विकली। ऐसे क्या कर रही थी? अच्छा ओके, नेक्स्ट। I was thinking the purpose for what you're standing, what all you have prepared. Probably I forgot something I prepared. I'm trying to recall. I'm trying to read something, है ना? एकदम क्या हो गया? That's what I'm ऐसे तो नहीं होगा कि expressions. निरूपा रॉय तो नहीं बनने वाली मैं। Yes, next. और कुछ जल्दी, क्या सोचा? शायद पानी पीने गए हैं, ओके? शायद कुछ भूल गए हैं, कुछ तैयारी करके आए नहीं ठीक से, अब पता नहीं लग रहा आगे क्या बोलूं। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट मिल गए, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माय गॉड, कैसे करूं? ऐसा लगा कुछ, ऐसा लगा कुछ। चलिए जल्दी से बताइए कि इस 1 मिनट में अगर कुछ लर्निंग निकालनी हो तो क्या निकल सकती है? दिमाग लगाइए, आप टीचर्स हैं, आप टीचर्स हैं, टीचर्स जैसे जवाब की उम्मीद करती हूँ मैं आपसे। बीएड एमएड के स्टूडेंट्स हैं, मुझसे कहीं बेहतर एजुकेशन और टीचिंग को जानते हैं। जल्दी बताइए, अगर इस 1 मिनट से लर्निंग लेनी थी, आपको लगा मैं कुछ भूल गई, क्या लर्निंग है? मैम एक ऑब्जर्वेशन भी हो रही थी आपकी तरफ से हम सबकी, आप ऑब्जर्व कर रहे थे। ऑब्जर्व कर रहे थे, ओके, वेरी गुड। लर्निंग, क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी अपार्ट फ्रॉम दो स्टूडेंट्स जिनका ध्यान सोशल मीडिया में है। अब मैं क्या करूं, मैं भी तो वैसी टीचर हूं ना। आपने कहा सोशल मीडिया में बच्चे जो उनके अलावा बाकियों में क्या हुआ? जिन्होंने देखा उनको क्या फील हुआ? क्यूरियोसिटी, कुछ भूल गए शायद, कुछ पढ़ेंगे शायद, शायद पानी पीने के लिए रुके, लेकिन पानी पीने के लिए देर हो गई, इतनी देर में तो पानी पी लेते। आपको क्या लगा? यस प्लीज। हाँ कुछ लापते होंगे। trying to search something up. What is the learning? Learning for a student or for a teacher? For a teacher, for a student. आपके लिए जो भी देख रहा, ऑब्जर्वर के लिए। अगर मतलब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं वहाँ पे होती एज ए टीचर एंड honestly I'm fetching for something, I should keep my children engaged at that time so that I don't lose the connection. तो मैं कुछ बोलती जाऊँ, अगर ढूंढ भी रही हूँ तो मैं बोलती जाऊँ बच्चों आई एम लुकिंग फॉर अ पेन, लेट मी सर्च अ पेन। मेरे को ये महसूस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप बताइए, that wonderful girl out there, she is very 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 curious girl. Yes, middle one. जी जी जी। I didn't hear what you said. What was the learning? Like ma'am said that I would have kept the students engaged in that time period so that the attention is not diverted anywhere. Yeah, when you forgot your topic, still you didn't make us feel that you forgot something. You keep it continue. That was your talent. I didn't continue, but she said that should have continued. But I didn't feel that. You didn't feel that. Okay. Your face expressions, they convey a lot. And same thing we can use in our teaching learning. Like with the help of face expressions only, we can make our lesson more interesting. Very nice, very nice. See, you cannot not communicate. Communicate anyway आप कर रहे हैं। मैंने कोई टीचिंग नहीं की उस टाइम, मगर मैंने बहुत कुछ टीच कर दिया। यानी आप यदि हैं क्लास में तो आपकी हर चीज बच्चों को कुछ बता रही है। अब इसका मतलब टीचिंग की जरूरत नहीं है, ये क्या बात होगी? टीचिंग की जरूरत नहीं है तो हम यहां क्यों आ गए? आज जमाना है कि टीचर हैज टू बी a storyteller
है? आपको अपने बचपन का क्या याद है? आई एम श्योर जो भी कुछ याद होगा वो 2 ही कैटेगरीज का होगा। क्या क्या याद है बचपन का? जल्दी जल्दी बता दीजिए। अब ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं। पीछे पीछे बच्चे पीछे जाइए प्लीज, माइक लेके। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग बेटा। यस, बचपन का क्या याद है? है जी, खेलना कूदना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, खेलना कूदना। खेलना कूदना। नेक्स्ट, ऐसे ही फालतू में टाइम पास करना। ओके, यस। नेक्स्ट, खेलना कूदना। खेलना और कूदना। लड़कियों को पूछोगे तो कुछ डिफरेंट जवाब होने चाहिए शायद। कोई दादी नानी की कहानियां, कोई तीज त्योहार, कोई कजन्स के साथ खेलना गर्मियों की छुट्टियों में, कोई गुब्बारे वाला, कोई आइसक्रीम वाला। क्या क्या याद है? और किचन सेट के साथ खेल, किचन सेट के साथ खेलना। वेरी नाइस। और जल्दी 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 है, बेफिक्री के साथ जीना। वेरी गुड। और बेफिक्री के साथ जीना। चलिए, एक इमोशन हो गया। आंखों के आगे विजुअल्स क्या क्या है वो मैं जानना चाहती हूँ। विजुअल्स, बार्बी डॉल, बार्बी डॉल। वेरी गुड, यस। कोई दिवाली, कोई बैसाखी, कोई तीज त्योहार, होली, कोई बर्थडे। जल्दी जल्दी बताइए एक घटना, जल्दी से। कोई एक घटना, कब टाइम स्पेंड किया? विजुअल। ब्रदर सिस्टर कोल ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਆਟੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। जनरल नहीं, कोई एक घटना बताइए कि हाँ तब हमने और मेरा ब्रदर हमने बड़ी शरारतें की, पेड़ पे चढ़ गए, नीचे गिर गए, टांगे टूट गई। यस यस, क्विकली। ਜਦੋਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਹਾਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अरे आप है, बोलो ना। चलिए चलिए, मैं आ रही हूँ पीछे। बोलिए बोलिए। भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा या भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा करना। वेरी गुड। और बचपन में से क्या याद है? और हमेशा गलत हो या सही पापा की सपोर्ट मिलती थी, बन जाती थी। पापा की सपोर्ट मिलना। ओके, नेक्स्ट। मैम स्कूल डेज और घर पर खेलना, घर पर खेलना और स्कूल डेज। ओके, पीछे 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 चलिए, पीछे ले जाइए थोड़ा भाई। नाम के पिन करके छुट्टियां बिताना। नान के घर में छुट्टियां बिताना। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। ये सब डर रहे हैं शायद। हाय राम, इतने डरावनी हूं मैं? माइक से डर रहे हैं। ओहो, भांडे तोड़े, तालियां बजनी चाहिए। नेक्स्ट। गर्मी की छुट्टी का वेट करना, गर्मी की छुट्टी का वेट करना। क्या आपने रियलाइज किया इन सारी चीजों में कॉमन क्या क्या था? खेलना। और किस तरह की घटनाएं हैं ये जो आपको याद है? अभी आप सारा जोर लगा देते हैं, आपको चैप्टर याद नहीं होता, ना आपके बच्चों को याद होता। ये कैसी बातें हैं जो याद है? याद करने की कोशिश भी नहीं की, कोई असाइनमेंट भी नहीं बनाई, कोई ऑडियो विजुअल एड से भी नहीं बताया गया, कोई रट्टे भी नहीं मारे गए, कोई क्वेश्चन पेपर भी नहीं आया। कैसे याद रह गई? और अगर मैं सच में आपसे पूछूं और अगर आप शर्म ना करें तो आप एक एक घटना बता सकते हैं पूरे विजुअल समेत। कौन से कपड़े पहने थे, चोटियां कैसे करते थे, खाने का स्वाद कैसा था। आज भी आपकी जीभ पे वो स्वाद आ जाएगा। बहुत सारे लोग शहरों में चले जाते हैं तो सोचते हैं कि जो साग जेड़ा चूल्हे से बनता ना उदा स्वाद ही कुछ और होता। मर्तबान जो ना अचार कट के मैंने याद है, मर्तबान जो अचार कटना मम्मी डांटते सी उल्ली लग जाएगी। अचार कट के टूट थले और खाई नहीं जाती, जेड़ा उत्ते मसाला हुंदा धो के एन्नियां फाड़ियां दिन च पता किन्नियां खा लीਆਂ। Look at this. Why she remembers that? Why she remembers? मर्तबान भी आंखों के आगे आ गया होगा। Because of 4 big reasons. Now comes theatre. ध्यान से सुनिएगा।
थिएटर के 4 भाग होते हैं। थिएटर का पर्पस है, नंबर 1, आपको एक ऐसी कहानी बताना जो आप सुने और उस एक्सपीरियंस से खुद गुजरे, सुने और उस एक्सपीरियंस से खुद गुजरे, इस तरीके से आपको बताना। अब आप कहेंगे वो तरीका क्या हुआ? वो तरीका 4 भागों में बटा है। फर्स्ट है आंगिक। आंगिक इज अंग से किया गया। अंग यानी फिजिकल, बॉडी से किया गया। अंग यानी बॉडी से किया गया। अब बॉडी में क्या आता है? बॉडी में क्या क्या आता है? एक तो आप दिखते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, मैं आज यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? क्या ऑब्जर्व किया? चलिए जल्दी से, चुप तो बैठने दूंगी नहीं मैं। बॉडी लैंग्वेज, क्या फर्क पड़ा मेरे वैसे खड़े होने में और ऐसे खड़े होने में? एनर्जी लेवल कम था, अभी थोड़ा हाई। खड़े होने में क्या फर्क पड़ा? पहले भी तो खड़ी थी, ये थोड़ी गई थी। Change in personality. I exist. I stand here on my 2 feet, equal weight on both. It makes a difference. Yes, it does. For a teacher, it makes a difference. So, पहला, कैसे खड़े होते हैं? क्या आपका पोस्चर है? क्या आपका जेस्चर है? उठो, कॉपी निकालो, चलो। हाफ जेस्चर इज नो जेस्चर। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहना है कि नहीं कहना है? खड़े हैं कि बैठे हैं? क्लैरिटी। आंगिक। आंगिक का ही दूसरा भाग है चेहरा। आपका चेहरा, आपकी 2 आंखें, आप किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, समझ आ गया? आई कनेक्ट आपका कितना है? तीसरा, आप जेस्चर किस तरह के कर रहे हैं? किस तरह के जेस्चर कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा हो गया कि मैं खड़ी तो थी यार पानी पीने के लिए, आपको लगा मैं कुछ भूल गई, यानी कुछ और तो नहीं कन्वे हो गया? और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेमिना। ये बारीक आवाज आज से ही छोड़ो। से व्हाट यू फील लाइक सेइंग और डोंट से। अभी आपके पास जिसके पास भी माइक आएगा, यू हैव टू बिहेव लाइक अ टीचर। इधर से और से आई डोंट वांट टू से, दैट्स ओके, आई रिस्पेक्ट दैट, ओके? तो ये एनर्जी लेवल। तो पहला है आंगिक, अंग से किया गया अभिनय। बात है अभिनय की, बात हो रही है किस तरह से आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी ऑडियंस को उस सेम एक्सपीरियंस से गुजारते हैं जिससे आप गुजारना चाहते हैं। तो पहला आंगिक। दूसरा वाचिक। अब वाचिक में हमारे पास बहुत स्कोप है। क्या है? कितना स्कोप है?
शब्द है, वो शब्द जो कह रहा है, वो शब्द जो कह रहा है, वो आप कह रहे हैं यानी कोई कहानी है, जरूर करें कि अगर बुढ़िया बात कर रही है तो वो बुढ़िया की आवाज में बात करे, इंटरेस्टिंग रहे। अगर कोई जवान आदमी बात कर रहा है, कोई राजा बात कर रहा है, तो वो राजा की तरह बात करे। और कोई भिखारी बात कर रहा है, हमारी बात बताइए आप कैसे बात करें। कोशिश कीजिए। तो वाचिक में हमारे पास स्कोप है, तो वहां पे आप अपने अपने तरीके से उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। याद रखिए, जब तक आप एक इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट सेंस कौन सी होती है इंसान की? उसको कुछ देंगे, कानों को कुछ देंगे, महसूस करने को कुछ देंगे। जितनी ज्यादा सेंसेस आप इन्वॉल्व करेंगे वही थिएटर है, जितनी ज्यादा सेंसेस। तो एक हो गया आंगिक, दूसरा हो गया वाचिक में बहुत स्कोप है, टोन्स का बड़ा स्कोप है। पानी है तो पानी होगा ना, जितने विजुअल आप अटैच कर सकें। तीसरा आहार्य। आहार्य होता है, आहार पता है आपको? खाना। लेकिन थिएटर में आहार खाना नहीं होता। थिएटर में आहार वो सब कुछ होता है जो आप लेते हैं, वो भी आहार ही होता है, इसीलिए आहार्य कहा जाता है। यानी ये माइक मदद हो गई मेरे को, बहुत ऊंचा बोलना नहीं पड़ रहा, ये माइक आहार है। ये रंग जो चुना है आपकी साइकी पे एक प्रभाव डालने के लिए चुना है, ये आहार है। क्लास में आप जाते हैं, अगर आप राजा का नाटक पढ़ा रहे हैं, एक राजा का मुकुट लेके जा रहे हैं, आहार है। या आपकी जो लेसन प्लान में आपके चार्ट पेपर्स होते हैं, चीजें होती हैं, बहुत कुछ आप लोग क्रिएटिव बनाते हैं, वो सब आहार। तो वो जितना उसमें आहार आप डालेंगे उतना वो अच्छा होगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सात्विक। क्या है? माने कितना आप इमोशंस को जोड़ पा रहे हैं उस लेसन के साथ। जैसे खट्टा अचार, जैसे टाइम पास करना, बहुत इमोशन जुड़ी होती है बहुत लोगों की टाइम पास करने के साथ। जैसे गर्मियों की छुट्टियों में नाम के जाना, जैसे गलत होने पर भी पापा का बचा लेना, इमोशंस जुड़ी हुई है। अब आप मुझे कहेंगे कि मैडम पढ़ाना तो हमने अकबर बीरबल है या साइंस पढ़ानी है या कॉमर्स पढ़ानी है, अब आप इमोशंस कैसे जोड़े? हर एक टीचर एक मुकम्मल स्टोरी टेलर होता है। स्टोरी में क्या होता है? जल्दी से बताइए, स्टोरी में क्या होता है? स्टोरी क्या होती है? इमोशंस, मॉरल। स्टोरी में होता क्या क्या? कैरेक्टर होते हैं, कुछ कैरेक्टर होता है, सेटिंग होती है, एक सेटिंग होती है, यस वेरी गुड। और क्या होता है? इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। अब क्या होता है, कुछ किरदार होते हैं, वो किसी एक सिचुएशन में होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ ना कुछ तो वो करते हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। ठीक है?
कुछ ना कुछ किरदार होते हैं, बोलो बोलो, कुछ ना कुछ किरदार होते हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ ना कुछ तो वो करते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है, और कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलता है। यही है ना। आप क्या पढ़ाते हैं? आप क्या पढ़ाते हैं? चलिए आप बताइए। इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम पढ़ाएंगे आप, क्या है इसमें? आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताइए आप। बिजनेस स्टडीज। उसमें क्या पढ़ा रहे हैं आप? मान लो कोई टॉपिक लीजिए छोटा सा, प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग। ओके, क्या होता है वो? मैम उसमें पहले से प्लान करते हैं where we are and where we want to go इन बिजनेस। तो आप क्या लेक्चर देना चाहते हैं? एक लाइन में बताइए कि लेक्चर का क्या मायने होंगे, मतलब क्या है? how to make plans हाउ टू मेक प्लान्स। अब प्लान क्या हुआ? प्लान में क्या होगा? एक तो किरदार होगा। कौन सा कैरेक्टर हुआ आपके प्लान में? मेन तो बिजनेस एंटिटी होगी कोई भी। जो बिजनेस एंटिटी होगा आपका किरदार होगा। आपके एटम्स हो गए, आपके नंबर्स हो गए, आपके XYZ हो गए, वही तो किरदार होगा। अब बिजनेस में बिजनेस एंटिटी एक किरदार हो गया। अब किसी तो वो सिचुएशन में है। क्या सिचुएशन है? क्या सिचुएशन है? आप इसे पूछने बेटे। हम रिपीट करना। जब आप लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, हम कहानी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। एक किरदार हो गया आपका बिजनेस एंटिटी। अब वो किसी सिचुएशन में है। क्या सिचुएशन है वो? सिचुएशन ऐसी है कि मैम स्टाफ रिक्रूट करने की हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये सिचुएशन है, स्टाफ रिक्रूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब उसमें कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? रिक्वायरमेंट्स है, एक प्रॉब्लम है। अब उसका कोई तो सोल्यूशन ढूंढना है। उस सोल्यूशन आपने पढ़ाना है कि कैसे ढूंढे, है ना। उसमें 3-4 तरीके होंगे कि ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, ये करें, ये करें, ये करें, ऐसे करें, वैसे करें, वैसे करें, ऐसे करें, और ये सोल्यूशन आप स्टोरी हो गई इसमें। जब तक आप अपने बच्चों को स्टोरी टेलिंग के थ्रू नहीं बताएंगे, तब तक उससे उनके इमोशंस कनेक्ट नहीं होंगे। सो यहां आता है सात्विक अभिनय का काम। बहुत जल्दी से आप अपनी सीट से खड़े हो जाएंगे, जल्दी से। शाबाश, जल्दी से खड़े हो जाइए। डांस किस किस को आता है? अरे बोलने को नहीं कहा, डांस किस किस को आता है ये पूछा। हाँ जी, हाथ खड़ा करें। हेलो, आंगी का अभिनय का तो सत्यानाश हो गया। बोल आप रहे नहीं, वाचिक का भी हो गया। कैसे करेंगे? कैसे? चलिए, आपको ये सुन रहा है? ध्यान से सुनिए। पहली बार मैं करूंगी,
ਯੂ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸੀ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਸਦਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਲੰਘਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਲਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਚੁੰਨੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਸਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਡ ਅਤੇ ਐਮਐਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖਡੂਰ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੀਐਡ ਤੇ ਐਮਐਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਐਕਟ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
मेरा मान है नवजोत का। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟ, ਇਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਵਜੋਤ ਤੇ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਚੁਗਲੀਆਂ।
ਉਹੀ ਯੂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਯੂਦੀ ਦੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ अच्छा अच्छा नहीं मेनू भी कल कहनी सी आ जाता है अपन सेल्फी सेल्फी करिए नहीं तो समझ ही ना लगी की है सेल्फी होनी है मेनू बड़ा होगा तेरे को पढ़े ना दस कूद की टच बड़ा ही करता ना ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਐਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੂੰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਿਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੂੰ ये भी पागल है वो भी पागल है सब पागल है यार पागल पागल कौन बोला पागल कौन बोला पागल मैं पागल नहीं हूँ मैं पागल नहीं हूँ मुझे पागल मत बोलना मैं पागल नहीं हूँ मैं पागल नहीं हूँ मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जब मैं मेरे बाबूजी और मेरी बहन गुड्डो हम लोग खुशी खुशी रहते थे और उन दिनों हमने गुड्डो की शादी भी तय कर दी थी गुड्डो गुड्डो मुझे और माँ को अपना लाल सुलभ जोड़ा पहन के दिखा रही थी और पूछ रही थी माँ माँ मैं कैसी लग रही हूँ माँ मैं कैसी लग रही हूँ और पता गुड्डो ने बिंदिया भी लगा रखी थी ऐसे ऐसे बिंदिया लगी थी गुड्डो के अच्छी लगती है ना गुड्डो भी बहुत अच्छी लगती थी जब उसने पूछा कि माँ मैं कैसी लगती हूँ तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया हमारी गुड्डो को परियों की रानी लगती है हमारी गुड्डो तो जीजू महाराजा की महारानी लगती है तो बोली माँ देखो ना ये मुझे चिढ़ाता है और माँ ने मेरे को कान से पकड़ा और पकड़ के एक लगाई मैंने अरे पहले उसकी शादी होने वाली है वो हमको छोड़ के जाने वाली है ऐसा करेगा तू उसके साथ पागल हो मैं डर गया था क्योंकि माँ ने बोला था ना कि गुड्डो छोड़ के चली जाएगी और मैं नहीं चाहता था कि गुड्डो हमको छोड़ के जाए मैं सच में डर गया था
मैं चुपचाप बैठा था, तभी बाहर से दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला, बाबूजी आए थे। बाबूजी शहर गए हुए थे गुड्डों के लिए सिलाई मशीन लाने के लिए। और बाबूजी साइकिल इधर रोका, सिलाई मशीन लाके रख दी गुड्डों के लिए। बहुत अच्छी सिलाई मशीन थी और बाबूजी बैठ गए। चलो भाई, गुड्डों की शादी के लिए दहेज का सामान तो हमने ले लिया, अब बस गुड्डों की शादी हो जाए तो इस बुढ़े कंधों से थोड़ा बोझ हल्का होगा। तो माँ ने पानी ला के दिया और बाबूजी ने वो पानी पी लिया। और पानी पीते पीते बाबूजी पता नहीं क्या सोच रहे थे। मुझे लगता था कि बाबूजी सोच रहे हैं कि गुड्डो चली जाएगी। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं जाने लगा तो बाबूजी ने रोक दिया। बाबूजी ने मुझे जाने से मना कर दिया। तो बाबूजी खुद गए और दरवाजा खोलने चले। अरे पता नहीं कौन से 4 बंदे थे, वो बाबूजी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अंदर आ रखे वो बाबूजी को। कहाँ है तुम? ये क्या मतलब है? अंदर घुसे आ रहे हो? कहाँ है तुम लोग? मेरे बाबूजी को जोर से धक्का मारा। बाबूजी रोने लगे। सालों ने बाबूजी को यहाँ से पकड़ा और बाबूजी को मार दिया। बाबूजी मर गए थे। अरे कौन है तुम लोग? ये क्या किया तुमने? तो बाबूजी को मार दिया तुमने? तो सालों ने एक लोहे का नट निकाला और मेरे माथे पे मारा। मैं दीवार के साथ जा गिरा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। मैं सब देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन उठ नहीं सकता था। और वो आगे आ रहे थे। वो हमारे गुड्डों की तरफ जा रहे थे। तो माँ आगे बताना, आगे बताना। उनमें से किसी ने खंजर निकाला और माँ के पेट के आर पार कर दिया। माँ एक चीख के साथ गिरी। गुड्डों की तरफ भाग रहे थे। गुड्डों बिल्कुल अकेले थे। गुड्डों के आगे वो उसके पीछे पीछे। गुड्डों के आगे वो उसके पीछे पीछे। और गुड्डों फिसल के गिर गई वहां। उन्होंने गुड्डों का पीछा किया। गुड्डों पीछे जा रही थी, चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, आगे बताना। और वो सारे गुड्डों के ऊपर जा रहे थे। गुड्डों के ऊपर जा रहे थे। वो गुड्डों पीछे जा रहे थे। गुड्डों पीछे जा रही थी और वो गुड्डों के ऊपर जा रहे थे। गुड्डों के ऊपर जा रहे थे वो और गुड्डों पीछे जा रही थी। उन्होंने गुड्डों का दुपट्टा लिया और ऐसे हवा में उछाला। और सालों ने गुड्डों का लाल सुबह जोड़ा फाड़ दिया।
सब देख रहा था, लेकिन क्या करता? सिर्फ देख सकता था, सोच सकता था, पर कुछ नहीं कर सकता था मैं। और वो गुड्डू के ऊपर आने लगे। गुड्डू अपनी नंगी हुई छाती को अपने हाथों से ढक रही थी। और जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी बहन की नंगी हुई छाती देखी थी। पहली बार मैंने अपनी बहन की नंगी हुई छाती। पर मैं क्या करता? मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो बारी बारी से गुड्डो का मांस नोचते रहे और वो देखता रहा। वो गुड्डो का मांस नोचते रहे और वो देखता रहा। और जब तक गुड्डो ने दम नहीं तोड़ा, तब तक उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। और फिर जब सालों के हर्ष की भूख मिटी, भाग गया वहां से। राक्षस थे वो, आदमी नहीं, राक्षस। पर मैं दीवार के साथ बैठा था, उठ नहीं सकता था ना। शाम तक वहीं बैठा रहा मैं, देखता रहा। कभी गुड्डो को, कभी मां को, कभी बाप को। फिर शाम को धीरे धीरे दीवार को पकड़ के मैं खड़ा हो गया और मैं चिल्लाया, चाचा, ताऊ, ओ गांव वालों, हम लुट गए। हमारी गुड्डो को किसी ने मार दिया, मेरे बाप को मार दिया। तभी गांव वाले आए। अरे ये क्या हुआ? अरे ये किसने की? अरे क्यों इसको मार दी? अरे मेरे चाचा भी उनके बीच। तो मैंने चाचा को बोला कि चाचा, हॉस्पिटल नहीं जाना, पुलिस थाने जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे सालों की, जेल करवा देंगे जेल। तो हम लोग पुलिस थाने गए और इधर कुर्सी पर थानेदार बैठा था। बोला, कैसे आना हुआ? कैसे आए हो जी? बोलो। मैंने बोला, भाई बाप, उन लोगों ने मेरे बाप को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, हमारी गुड्डो का रेप कर दिया। भाई बाप, उन लोगों को सजा दो। तो बोला, कितनी उम्र थी तुम्हारी बहन गुड्डो की? मैंने बोला, माय बाप, वो 21 साल की थी। 21 साल की नादान छोरी थी वो। कब ऐसी 21 साल की छोरी दिखने में कैसी लगती थी? माय बाप, वो परियों जैसी थी, परियों जैसी, एकदम सुंदर। तो सारा खा के लगाने लगा। ऐसी परियों जैसी सुंदर बहनें तो बलात्कार के काम में आती है। पहले क्यों नहीं बताया? हमें सेवा का मौका दे दिया होता। मेरे को गुस्सा आया साले पे। मेरे चाचा मेरे को इधर खींच रहे थे, मैं चाचा को इधर खींच रहा था, वो मेरे को इधर खींच रहे थे, मैं इधर खींच रहा था। मैंने चाचा से हाथ छुड़वाया और एक लगाई साले के एक। पकड़ लो साले को। मेरे को पकड़ लिया उन लोगों ने, मारा। सालों ने खून मारा मेरे को। 10 दिन तक मारते रहे मेरे को। मेरे चचा भाग गए वहां से, गांव वाले भी भाग गए। जब मैं रोटी मांगता तो साले देते ना मेरे को। जब मैं पानी मांगता तो साले मेरे मुंह पर पेशाब कर देते। पेशाब। और ये पता क्या है? ये मेरी बहन की सलवार है, जो गुड्डू ने उस दिन पहनी हुई थी। यहाँ से फाड़ दी सालों ने,
एकदम बेकार है। ऐसा करते हैं, इसकी जो जमीन जायदाद है ना, वो आप ले लो। आप इसके चाचा हो ना, इस साले को पागल खाने छोड़ देते हैं। मेरे को इस बात से परेशानी हो रही थी। मेरा चाचा चुपचाप चला गया वहां से, मुझको लेकर नहीं गया वो। तो साले मेरे को बांध के पागल खाने ले गए, छोड़ के आ गए वहां। और वहां नेता, मास्टर, डॉक्टर, जहाज उड़ाने वाले, पता नहीं कौन कौन थे वहां पे। नेता का सल्यूट करो, वोट दो, नोट लो। अरे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है भाई, हिंदी क्यों नहीं सीखोगे? है वो चलो एक दो दिन जैसा एक दो दिन में 11 बजे से 9 10 12 बजा कराऊंगी की अरे सीरो जहाज उड़ने वाला है, अभी जहाज उड़ेगा। अरे जिन लोगों का बीपी लो है ना, वो तो इधर है भाई, चेकअप करा लो। हाँ, अगर किसी का शुगर लो गया, हमारी जिम्मेदारी है, हम तो डॉक्टर लोग हैं भाई, हम तो डॉक्टर लोग हैं। ऐसे साले वहां पे मेरे को लगने लग गया मैं भी पागल हूं, साले ये भी पागल है, मैं भी पागल हूं। मैं पागलों की तरह वहां घूमता रहा। 1 साल तक मैं पागल खाने में रहा। एक दिन मैं लाइन में लगा हुआ था, खाना खाने के लिए, खाना लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था। तो मैं इस पागल खाने की छत के ऊपर से कूद गया और भाग के यहां गया। अब तुम लोग बोलते हो कि मैं पागल हूं यार, मैं सच में पागल हूं क्या? अब बोलो पागल। बारी बारी से बोलते थे ना, हंसते थे ना मेरे पे, ये पागल है। अब बोलो पागल। अगर जिसकी बहन गुड्डो जैसी सुंदर होती है वो पागल होता है, तो हाँ मैं पागल हूं। अगर जिसके माँ बाप को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाए, अगर वो पागल होता है ना, तो हाँ मैं पागल हूं। उस थानेदार के बोलने जैसा किसी की बहन गुड्डो जैसी सुंदर हो, अगर वो पागल होता है ना, तो हाँ मैं पागल हूं। अब बोलो पागल मेरे को। भगवान उठा बोल गया, हे भगवान क्या मैं पागल हूं? बोल क्या मैं पागल हूं? अगर मेरे को भेजना ही था, इन लोगों के बीच क्यों भेजा मेरे को किसी नारी का गंदा कीड़ा बना देता। अरे मेरे को किसी गली का हमारा कुत्ता बना देता। इनके बीच क्यों भेजा? जो पागल हैं, पागल दो चेहरे हैं इनके, मेरे को पागल बोलते हैं सारे। ये सब पागल हैं। आपके घर में भी सुंदर माँ बहन है ना? हेलो भगवान, हाँ इनके घर में सुंदर माँ बहन है। हेलो भगवान, हेलो नेटवर्क नहीं है ना? हाँ भगवान, कट गया, काट दिया भगवान ने भी। सब छोड़ देते हैं, भगवान भी, इंसान भी। जिसकी बहन के साथ बलात्कार हो जाए ना, जिसके माँ बाप को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाए, कोई नहीं होता उसका, कोई नहीं होता। कट गया भगवान भी। तुम्हारे घर में सुंदर माँ बहन है ना? तुम भी पागल हो। तुम्हारे घर में बेटियां है ना, जैसे हमारे थी, तो तुम भी पागल हो। तुम्हारे घर में माँ बाप है ना, तो तुम भी पागल हो। सब पागल।
ਜੀ ਸਰ। ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਇਸ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ 2-4 ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੀ। truly speechless। कहते हैं दो ही लोग होते हैं दुनिया में, एक माँ बाप, एक गुरु, जो अपने बच्चों को खुद से आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं। Indeed, thank you so much, Gurmeet, for making us so proud. I on behalf of my Department of Performing Arts, जहाँ के आप स्टूडेंट हैं, हम प्राउडली कहते हैं आप बनाई है हमारे, और डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया, जिन्होंने आपकी जर्नी में आपका साथ दिया, आपके कलीग्स, आपके पीयर्स, और मैं करणजीत सर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की सारी फैमिली की ओर से आपके लिए छोटा सा सम्मान चिन्ह लाए हैं। बात छोटे बड़े के लिए, व्हेन कमिंग फ्रॉम योर ओन पेरेंट डोमेन, इट मैटर्स। आई थिंक जिस तरह का लास्ट 1.5 आवर तो तुसी प्रोग्राम देख रहे हो, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਟੀਚਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ all deserve a big round of applause from all of you। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਟਲ ਥੀਏਟਰ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, but after listening Dr. Samriti Bhardwaj and seeing the act of students as well as act by Gurmeet sir, I think the title can be modified theatre in life, not only in education। एक बार जोरदार तालियां लगा दो तो कितना पंजाब। Last but not the least, प्रोफेसर गुरमीत जी जिन्होंने ने सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, मैम ਨਾਲ संपर्क किया, बच्चों ਨਾਲ संपर्क किया, सारी स्टेज ਨੂੰ ऑर्गेनाइज किया। कंग्रेचुलेशन टू प्रोफेसर गुरमीत। So once again, thanks to each and everyone for participating in this program and learning something new. Thank you very much.